Namaste everyone. Abhyuday Vidyasthi online classes welcomes to you. Today we will read section 2 of class 6, The Sweet Sound of Success. This is written by Nandini Nair. Nandini Nair is most quoted Hyderabad based child's writer. She has published 53 books for children. Okay, so in this story, the writer portrayed a very important role of a teacher in shaping hidden talent of a student. Okay, so uh, here in this story, a boy named Ali, appreciated for storytelling. Okay, so here the scene of a classroom. Okay, where a boy Ali who had told a story to the whole class. ये जो सीन है यहाँ पे क्लासरूम का सीन है. यहाँ पे जो बॉय है नेम अली, अली एक स्टोरी सुना रहा था सभी को. ठीक है, तो टीचर उसके लिए सभी से कहते हैं कि उसको अप्रिशिएट करे, उसके लिए क्लैपिंग करे लाइक दिस. सो लेट्स स्टार्ट. Let's clap for Ali, Mrs. Rajan said, for telling us such a lovely story. Now, their teacher's name is Mrs. Rajan. Mrs. Rajan है उनकी टीचर का नाम, जो बच्चों से कहती है कि अली ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई है, लवली स्टोरी सुनाई है, तो उसके लिए क्लैप करें. The class erupted into applause. Ali stood beside the teacher, smiling proudly. और इसी के साथ जो सारा क्लासरूम है उसके लिए क्लैप करने लग जाता है. अली को काफी ज्यादा प्राउड फील होता है. As Ali walked back to his seat, people reached out to shake his hand or grin at him. अब जैसे ही अली अपनी सीट पर वापस जाते हैं, सारे बच्चे उससे हैंडशेक, उसको कांग्रेस करने आ जाते हैं, हैंडशेक करते हैं उसे. ठीक है. Only Rishi sat bent over his notebook, his pencil moving across the page. और उसी क्लासरूम में एक और स्टूडेंट होता है. His name is Ali. Sorry, Rishi. His name is Rishi. उसका नाम ऋषि रहता है. वो उसको कोई विश करने नहीं चाहता, वो अपनी सीट पे बैठकर कुछ ड्रॉ करता है, कुछ लिख रहा होता है. What a lot of fuss for nothing, he thought scornfully. His pencil raced across the paper and a picture took shape there. अब वो सोच रहा होता है scornfully. Scornfully means with dislikes. उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि अली ने कौन सी स्टोरी सुनाई, कैसी थी उसकी स्टोरी, मैं उसे जाके विश करूँ. लाइक उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो बस पेंसिल लेकर एक पेज पर ड्रॉ कर रहा होता है कुछ. Ali was there wearing a crown's cap and sporting a silly smile. Mrs. Rajan was easily identified by her large smile and her short hair trickling to her chin. Rishi grinned at the picture. अब जो ऋषि होता है वो किसका पिक्चर ड्रॉ कर रहा था? वो अली का पिक्चर ड्रॉ कर रहा होता है with a big smile. और उसे जोकर वाला क्लाउन्स कैप पहना दिया होता है उसने. मिसेस राजन उसे देखकर समझ जाती कि वो कुछ नॉटीनेस कर रहा है क्लास में. Mrs. Rajan's voice washed over him, but Rishi was engrossed in the world of his own creation. Means मिसेस राजन क्लास में कुछ कह रही होती है, लेकिन जो ऋषि है वो अपने वर्क में, अपनी ड्राइंग में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि उसे मिसेस राजन की आवाज़ नहीं सुनाई देती है. He finished the picture he had drawing and moved to the next one. अब अपना फर्स्ट पिक्चर वो कंप्लीट कर लेता है और वो नेक्स्ट पिक्चर की ओर बढ़ता है, मीन्स नेक्स्ट पिक्चर बनाता है वो. Deeply he realized that Mrs. Rajan was discussing the school day and asking for the suggestion about class 6C could do for this special day. और इस बीच ऋषि को सुनाई देता है जो टीचर है मिसेस राजन है वो डिस्कस कर रही है, स्कूल डे से रिलेटेड कुछ डिस्कशन कर रही है और सभी के सजेशंस चाहती है. और वो कौन सी क्लास में था? ऋषि और अली, किस क्लास की बात हो रही? क्लास 6. Ali would be sure to do some story writing on or storytelling, Rishi thought, while his busy fingers shaded the new picture. अब जो ऋषि है वो सोचता है जो अली है वो तो ऑब्वियसली कोई स्टोरी टेलिंग करेगा या कोई स्टोरी राइटिंग करेगा स्कूल डे के लिए. ठीक है, और उसका इस बीच उसका जो न्यू पिक्चर रहता है, नेक्स्ट जो अनदर पिक्चर उसने स्टार्ट किया होता है वो रेडी हो जाता है. This one featured Rishi himself dressed in a superhero's costume, rescuing a room filled with screaming children. It was as Rishi was writing 6C over the door in the picture that he became aware of a sudden hush. He looked up and there was Mrs. Rajan. अब क्या होता है, ऋषि जो अपनी सेकंड ड्राइंग जो कंप्लीट कर रहा होता है उसमें क्या बनाया होता है उसने?
ऋषि ने खुद को बनाया होता है एक सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में, जो कि जो बच्चे हैं क्लास 6 में, क्लास 6 के बच्चे, उनको रेस्क्यू कर रहा होता है, ठीक है। और तभी उसकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है और वो ऊपर देखता है तो वो देखता है मिसेस राजन उसके पास खड़ी हुई थी। May I see your notebook, Rishi? And she asked to Rishi that may I see your notebook? क्या मैं आपकी नोटबुक देख सकती हूँ? Mrs. Rajan said pleasantly, but Rishi heard the order in those words and handed the book over. और ऋषि उनको उसकी जो नोटबुक होती है वो टीचर को हैंड ओवर कर देता है। There was a little silence, then Mrs. Rajan said, "Please meet me after the class, Rishi." So Mrs. Rajan said to Rishi that after this class you will meet me. इस क्लास के बाद में, इस लेक्चर के बाद में तुम मुझसे मिलोगे। बहुत ही प्लीजेंट होके कहती है। And that was it. Mrs. Rajan went back to the front of the class and continued the discussion about the play and dances they were going to put for this school day. और फिर मिसेस राजन उसे इतना कहकर वापस अपनी प्लेस पर मिस डोर के पास में चली जाती है और अगेन शी स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट द स्कूल डे। स्कूल डे पर वो डिस्कशन फिर से स्टार्ट कर देते हैं। बट ऋषि न्यू दिस वॉज द ओनली बिगिनिंग। बट ऋषि को पता है कि ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। मिस मैम ने अभी बहुत ही ठंडे से कहा है कि मुझे क्लास के बाहर मिला, बट ऋषि सोचने लग जाता है कि फिर आगे क्या होगा, टीचर क्या बोलेंगे, लाइक दिस। एंड इट वॉज विद अ हैवी हार्ट that he waited in the classroom while everyone else grabs their bag and rest away. और क्या होता है फिर लेक्चर फिनिश हो जाता है, सभी अपना बैग लेकर चले जाते हैं और ऋषि वहाँ पर मिस बहुत ही थोड़ा सा टेंशन में होता है कि टीचर अब क्या बोलेंगे, इस टाइप से वहाँ बैठा रहता है क्लास में। ऋषि न्यू व्हाट वाज कमिंग। ऋषि जानता था कि टीचर क्या कहने वाले उससे। मिसेस राजन वुड स्कोल्ड हिम फॉर ड्राइंग इन क्लास। मिसेस राजन उसे डांटेंगी कि वो क्लास में ड्राइंग कर रहा था। She would talk about how badly he did in his test और एग्जाम, या फिर वो मेरे टेस्ट और एग्जाम्स में मैंने कितना गंदा परफॉर्मेंस दिया, इस वजह से मुझे डांटेंगी। She would threaten to call his parents to have a talk with them, या फिर वो मुझसे कहेंगी कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है, लाइक दिस। And somewhere along the way she would remember that Riya was his sister. The next 10 minutes Rishi was sure would be spent in telling him how wonderful Riya was and what a good and senior student, as if Rishi didn't know any of this thing. और फिर ऋषि को ये भी लग रहा था कि ऋषि की जो सिस्टर है रिया, टीचर उनके बारे में कहेगी कि वो कितना अच्छा पढ़ती है, कंपैरिजन करेगी कि ऋषि जो रिया है बहुत टैलेंटेड है, बहुत सीनियर है, तुमसे अच्छा पढ़ती है, तुमसे अच्छे मार्क्स लाती है, इस टाइप की टीचर बातें करेगी। ये सारी बातें ऋषि के दिमाग में चल रही होती है। थिंकिंग ग्लूमली of the lecture that waited him, Rishi walked slowly to front of the room and stood in front of teacher. Now gloomily means with a heavy heart, means काफी ज्यादा डर से अपना हार्ट जो फील हो जाता है, तो उस हार्ट के साथ वो जाता है टीचर के पास, काफी डरा सहमा सा, और टीचर के सामने जाके वो खड़ा हो जाता है। Now Rishi, Mrs. Rajan said, "My classes are not really that boring, so I guess you have some other reason for drawing when you should be listening." टीचर मिसेस राजन ऋषि से कहती है कि मेरी क्लास इतनी भी बोरिंग नहीं है कि तुम्हें मतलब मेरा मेरा मैं जो बातें कर रही थी उसको छोड़कर दूसरी चीजें करनी पड़े, इतनी बोरिंग भी मेरी क्लास नहीं है। And before the surprised Rishi could say anything, she went on. After seeing your drawing, I can understand that you love drawing. अब ऋषि कुछ एक्सप्लेनेशन देता, कुछ एक्सक्यूज देता अपने उस ड्राइंग का, क्लास में जो चीज कर रहा था उससे पहले टीचर कह देती है कि आफ्टर सीइंग योर ड्राइंग, मींस तुम्हारी ड्राइंग्स देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हें ड्राइंग करना काफी ज्यादा पसंद है। सो दिस वंस आई प्रिपेयर टू एक्सक्यूज यू, बट शी stared sternly at him, only if you promise to never draw in class and if you promise to get the scenery of our play for the school day. और वो ऋषि को काफी ज्यादा शॉक हो जाता है जब टीचर उससे कहती है कि आपसे प्रॉमिस करो, मिस काफी अच्छे से बोल, थोड़ा कठोर होके बोलती है वो कि आपसे प्रॉमिस करो तुम क्लास में कभी ड्राइंग नहीं करोगे, और एक और प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम स्कूल एनुअल डे जो अपना स्कूल डे है उसके लिए एक सीनरी डिजाइन करोगे, उसके लिए जो बैकग्राउंड होता है बैकग्राउंड के लिए एक पेंटिंग ड्रॉ करोगे, एक सीनरी ड्रॉ करोगे। सो
वह इस टाइप से ऋषि से कहती, तो ऋषि काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि टीचर मुझे डांट नहीं रही है, और मतलब डांटने के बदले उन्होंने मुझे एक वर्क दे दिया रिलेटेड टू ड्राइंग। सो काफी ज्यादा उसे शॉक लगता है पहले तो। नाउ ऋषि स्टेयर्ड एट टीचर, लॉस्ट फॉर वर्ड्स, देन ही nodded dumbly before saying yes ma'am। और ऋषि कुछ कह ही नहीं पाता, अब टीचर ने तो उसके मन का काम उसको दे दिया होता है, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है, तो वो कुछ कह नहीं पाता और जस्ट नॉडिंग कर देता है कि यस यस मैम, लाइक दिस। सो ऋषि डिड नॉट ब्रेक हिज वर्ड्स टू मिसेस राजन, और ऋषि मिसेस राजन की कोई भी बात टॉलरेट नहीं करता है। Why would he when he was being asked to draw? Mrs. Rajan loved his drawing of a superhero rescuing children of class 6C. So Mrs. जो राजन रहती है, उन्हें जो ऋषि ने जो ड्राइंग की होती है, खुद को सुपर हीरो की तरह शो किया होता है, जो क्लासरूम को रेस्क्यू कर रहा है, ठीक है। सो काफी ज्यादा मतलब खुश होता है कि टीचर ने मुझे अप्रिशिएट किया है, लाइक दिस। Ali and Om, the best writer in the class, were roped into the write a play based on the picture। और टीचर इसी के साथ मिसेस राजन जो है वो अली और ओम को भी एक वर्क देती है, उन्हें कहती है जो पिक्चर है जो ऋषि ने ड्रॉ की है, जो पिक्चर सुपर हीरो वाली, उस पर एक स्टोरी राइट करे वो लोग। Once that was ready, Rishi began designing the set for the play। और जैसे स्टोरी रेडी हो गई, वैसे ही ऋषि ने उस प्ले के लिए सेट तैयार करना, डिजाइन करना स्टार्ट किया। ओ ऋषि, इज द शेड ऑफ ब्लू ऑल राइट, नीलू कॉल्ड। और इस बीच सभी बच्चे उसमें बहुत ज्यादा एंगेज हो जाते हैं, सभी ऋषि की हेल्प लेते हैं, ऋषि भी सभी की हेल्प करता है। इसी बीच जो नीलू रहती है, नीलू से पूछती है कि ऋषि ये जो इसमें जो ब्लू कलर है ये अच्छा लग रहा है, ऐसा कर। Rishi was painting the classroom door in the scenery, but he ran to help नीलू। अब ऋषि उसका काम कर रहा था, वो क्लासरूम डोर पेंट कर रहा था, और इसी बीच जो नीलू आवाज देती है उसे, तो उसकी हेल्प करने चला जाता है। परफेक्ट, ही स्माइल्ड, और उसे स्माइल करके वो कहता है कि परफेक्ट मिस, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। ऋषि नफीशा बैड। अब इस बीच ऋषि को एक और गर्ल आवाज दे देती है, उसका नाम कहता है नफीशा। कैन यू हेल्प मी पेंट दिस। और वो उससे बोलती है ऋषि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इसको पेंट करने में। ऋषि showed her how to paint the faces of the children crowding the door of the classroom। और ऋषि उसकी हेल्प करता है कि किस टाइप से फेस को पेंट करना चाहिए, और उसे बताता है, सिखाता है उसे कि कैसे करना है ये। राइट एट द बैक ऑफ द क्राउड ही पेंटेड मिसेस राजन। और उसी जो क्राउड रहता है जहाँ पे वो बच्चे वगैरह ड्रॉ कर रहे होते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, वो इस टाइप से ड्रॉ करता है, तो इसी बीच मिसेस राजन का भी वो पिक्चर ड्रॉ करता है। द फेस वॉज टीनी बट द वाइड स्माइल एंड द शॉर्ट हेयर मेड इट इजी टू आइडेंटिफाई द टीचर। अब टीचर का जो लुक रहता है वो काफी मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं दिखता है, लेकिन वो एक बड़ी सी स्माइल देता है, शॉर्ट हेयर्स रहते हैं टीचर के, तो वैसा उनको प्रिटेंड करता है कि बस ये टीचर है और ऐसे दिख रहे हैं। He forgot all about it till the day everything was ready and Mrs. Rajan was invited to inspect it। अब सारा जो वर्क कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में वो लोग मिसेस राजन को इनवाइट करते कि एक इंस्पेक्शन ले ले, मीन्स चेक कर ले कैसी कैसी सारी चीज़ें हुई है, अच्छी है या नहीं है, कहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, तो उन्हें इंस्पेक्शन के लिए वो इनवाइट करता है। Then, watching the teacher look at everything carefully, Rishi felt his heart begin to thump। अब टीचर जब इंस्पेक्शन कर रहे होते, सारी चीज़ों को देख रहे होते, तो ऋषि थोड़ा सा नर्वस होता है, मीन्स टेंशन में आता है कि पता नहीं टीचर को पसंद आएगा या नहीं, उन्हें कैसा लगेगा, क्या कहेगी, लाइक दिस। सो व्हाट इफ शी थॉट इट वाज सिली, व्हाट इफ शी कॉट साइट ऑफ हर ओन फेस एंड वाज अनाइड विद हिम। सो ऋषि सोचता है कि अगर कोई चीज़ उनको पसंद नहीं है, सिली लगी, और अगर उन्होंने खुद खुद की पिक्चर देखी और उनको थोड़ा सा अनोइंग लगा, तो वो क्या कहेंगी, इस टाइप से ऋषि के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। With a thumping heart and a sick feeling in his stomach, Rishi waited for the teacher to finish her inspection। काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है वो, तो वेट करता है कि टीचर कब उनका इंस्पेक्शन ख़त्म करे और कब उन्हें बताए कि कैसा क्या है, कैसी ये सारी चीज़ें। Then she turned to him and said, Rishi, this is wonderful. It's so realistic and yet so full of fun. I'm proud of you। और जैसे टीचर इंस्पेक्शन अपना फिनिश करती है, टीचर ऋषि के पास आती है, ऋषि को कांग्रेस कहती है, मैं उसे बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा तुमने बहुत अच्छा किया, काफ़ी वंडरफुल है तुम्हारी पेंटिंग, बहुत रियलिस्टिक है, ये सारी चीज़ें उससे कहती है।
She began to clap, and one by one everyone joined until the room echoed with the sound of their appreciation. और टीचर फिर मिस ऋषि के लिए सभी बच्चे क्लैप करने लग जाते हैं, टीचर क्लैप करवाती है और सारा जो रूम रहता है वो क्लैपिंग से गूंज उठता है. Looking at the smiles in the room, Rishi knew that his talent was truly being appreciated. और ऋषि के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और उसको भी अंदर से फील होता है कि हाँ मिस मैं टैलेंटेड हूँ और मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसा कि टीचर ने किया है. This was how the audience would clap on the school day. This was how his parents would smile at him, proud and happy. But that was later. For now, Rishi was happy to listen the sweet sound of success. अब ऋषि सोचता है उसके मन में कि स्कूल एनुअल डे पर भी इसी टाइप की क्लैपिंग हो रही होगी उसके लिए, उसके पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, प्राउड फील करेंगे ऋषि पर. सो ये सारी चीज़ें तो स्कूल डे की थी, लेकिन जो अभी जो ये जो स्वीट साउंड ऑफ सक्सेस थी ऋषि उसे उस टाइम पर फील कर रहा होता है. Okay, so here our story is finished. I hope you like this story. So thank you.